Hello, dear students. Welcome to all of you on our online educational platform, Safalta Digital. This is our first day, and I am with you to teach you chemistry of 11th class. Before we start our reading, I would like to introduce you to some things which are very important for you before we start our reading, and which will be beneficial for your future also. Yes, dear students, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है और जो आपके भविष्य में भी बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं. These things will be very important for your future and for online study. Okay, so let's we start. Do one thing at a time, and while doing it, put your whole soul into it. Then you will get your desired success definitely. There will be no reason that you will lose your desired achievement, desired aim. You can do everything. All the powers within you, you can do anything, everything. You believe that. Do not believe that you are weak. मत समझो कि तुम कमजोर हो. आप सब कुछ कर सकते हो, हर काम कर सकते हो. You can do everything. Believe in that. Do not believe that you are weak. मत समझो कि तुम कमजोर हो. You can do everything and everything. You will have to introduce yourself. You will have to stand up and express yourself, express the divinity within you. Yes, dear students, you have special divinities. Everybody has a divinity within him. Within each of you there is the power to remove all wants and all miseries. Yes, dear students, हम सभी के बीच में, हम सभी के अंदर वह ताकत है जिसके माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं. बट व्हाट इज नेसेसरी? नेसेसिटी इज दैट वी हैव टू पुट आवर होल सोल. हमें हमारा पूरा इफर्ट, हमारा पूरी आत्मा उस काम को करने के लिए लगानी पड़ेगी. यस डियर स्टूडेंट्स, यू कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग विच यू वांट टू डिजायर, which you want to do, which you desire. Okay, so I would like to tell to all of you that take a one idea at a one time, take a one dream at a one time. एक समय पर एक सपना आप सोचिए. Make that one dream your life, and then think of it, dream of it, and live on that dream. उसके बारे में सोचिए, उसी के साथ रहिए, and let your brain, muscles, nerves and every part of your body be full of that dream. हमारे शरीर के एक एक अंग को, दिमाग को, मसल्स को, नर्व्स को, सभी को उस काम को करने के लिए लगा दीजिए. and just leave alone any other idea. तो keep away any other idea alone. छोड़ दीजिए दूसरे विचारों को. उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में ही सोचिए, दूसरे काम के बारे में मत सोचिए. Then you will definitely win. Yes, dear students, you will win surely. I guarantee you. But we will have to express ourselves. We will have to express divinity within us.
So I would like to tell to you all of the dear students, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं, आपके कुछ भी उद्देश्य हो सकते हैं, आप उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपना संपूर्ण एफर्ट लगाइए, आप निश्चित रूप से जीतेंगे। आप जीत सकते हैं, आप कर सकते हैं, हम जीत कर रहेंगे। Now let we start our chapter. Yes, dear students, again before we start our chapter, I would like to introduce you some important things also. मैं पाठ शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, ऑनलाइन स्टडी विशेष रूप से ऑनलाइन स्टडी हम शुरू करने के पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारी ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छी हो सकती है, हम उसे इंटरेस्ट से कर सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट, इंटरेस्ट बढ़ाना आवश्यक है, और इंटरेस्ट किन चीज़ों से बढ़ेगा वह मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट इज वॉच क्लासेस विथ फुल डेडिकेशन। डेडिकेशन, यस डियर स्टूडेंट्स, डेडिकेशन होता है समर्पण। वॉच क्लासेस, जो क्लासेस आप देखोगे उन्हें फुल समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ देखना है। अगर मगर किंतु परंतु के साथ, किसी शंका के साथ नहीं देखना है। आपको अपना एफर्ट उसमें डालना पड़ेगा। जिस तरीके से जब हम भूखे रहते हैं, भोजन के बारे में सोचते हैं, और कैसा भी, जब ज़्यादा ही भूख लगी हो तो कैसा ही भोजन हमारे सामने हो, हम उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी तरीके से आपको कोई भी वीडियो मिले, उसे सीखने के समर्पण के साथ आपको उन वीडियोस को लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हों। So this is first important thing. Dedication is important for understand any topic. Watch class with proper understanding यानी कि आप जब भी क्लासेस देखें तब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। चाहे अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियोस को पॉज करके, रिवर्स करके अगेन एंड अगेन वॉच करें, और ट्राई टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स। ओके, सो दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट डेडिकेशन, सेकेंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सिट विद योर नोटबुक एंड पेन while watching videos. While watching videos, you should sit with your notebook and pen. ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपको अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठना चाहिए, और पॉज कर करके उनके जो कंटेंट जो लिखे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं, उनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए। दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, फॉर मेक योर नोट्स एंड लर्न देम। नोटबुक और पेन जब लेकर आप लोग बैठेंगे तो केवल दिखाने के लिए नहीं होंगे, आप उनका यूज करेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर कोई वर्ड आपको कठिन लगता है तो यू कैन ट्रांसलेट इनटू योर इजी वर्ड एज यू लाइक। अगर कोई वर्ड आपको कठिन लगता है तो उसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। नोट्स बनाने का ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है कि आप उसको अपने शब्दों में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। 5 important thing is watch classes at least 3 times a day. It might be hard for majority of the students. ये अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन it is important because
हमारे जो मस्तिष्क है वह वीडियो फॉर्मेट में चीज़ों को ज़्यादा लर्न करने के एबल होता है। हमें कोई भी चीज़, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम कोई भी चीज़ हमारी आंखों के थ्रू देखते हैं, कोई घटना हमारी आंखों के सामने हो गई है, तो देखो हम काफ़ी समय तक उस घटना के बारे में, चूंकि वह घटना हमारी आंखों के सामने हुई है, इसलिए वो वीडियो फॉर्मेट में हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो गई है। तो हम हमारे फ्रेंड से, रिलेटिव से, पेरेंट्स से उस इंसिडेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा मेमोराइज हमारे माइंड में हो जाती है, क्योंकि हम उसको और ज़्यादा बात कर रहे हैं। हमने वीडियो फॉर्मेट में हमारे आंखों के द्वारा हमने वो चीज़ देखी, आंखों से वह हमारे ब्रेन में गई, और वीडियो फॉर्मेट में जाने से वह कुछ समय के लिए मेमोराइज हो गई, और उस मेमोराइज चीज़ को हम हमारे रिलेटिव से, फ्रेंड से और सभी आसपास के लोगों से चर्चा करते हैं, क्योंकि वह मेमोरी हमारे दिमाग में है, उस घटना के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसलिए वो चीज़ हमारे लॉन्ग टाइम के लिए मेमोराइज हो जाती है। तो दिस इज ए नेचुरल वे विच वी शुड यूज वाइल ऑनलाइन क्लासेस। यस डियर स्टूडेंट्स, आप यदि वीडियो को बार बार देखोगे विद अंडरस्टैंडिंग, विद डेडिकेशन, with your full effort at least 3 times in a day, then topics will go in your mind automatically, and you will remember things automatically for a long time, that any single topic you will not forget. आप कोई भी टॉपिक नहीं भूलोगे। So dear students, you will have to remember these 5 important topics. Okay? आपको ये 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऑनलाइन टीचिंग आपको करनी है। वीडियो देखोगे, डेडिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, नोटबुक एंड पेन, मेक योर नोट्स एंड वॉच एटलीस्ट 3 टाइम इन अ डे, है ना। यू माइट वॉच इट इवनिंग और इन द मॉर्निंग, जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप देख सकते हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। यस डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11th केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, एंड उसमें हम चैप्टर नंबर, वी विल रीड चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट, मूलभूत अवधारणाएं, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, मूलभूत कंसेप्ट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बिफोर, अब ये चैप्टर पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें मिलेगा क्या, व्हाट वुड वी गेट, व्हाट वुड वी अचीव आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, हमें क्या मिलने वाला है इस चैप्टर से। तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्फेयर ऑफ लाइफ। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल को हम समझ पाएंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। यस, क्या महत्व है केमिस्ट्री का। चारों तरफ केमिस्ट्री है, केमिकल है, सब केमिकल है, हमारे चारों ओर सब केमिकल है। ये किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में, हम किस तरह से हम इनको यूज कर रहे हैं, हम कैसे केमिकल से बने हैं। all are made up of chemicals. Yes dear students, so we will understand the role of chemistry in different space of our life. Second thing is explain the characteristics of 3 states of matter. हम ये समझने के एबल हो जाएंगे, ये समझने जो 3 अवस्थाएं हैं मैटर की, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में हम आसानी से समझ पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। क्लासिफाई डिफरेंट सब्सटेंसेस इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। जो सब पदार्थ के जो मैटर है, मैटर
को हम क्लासिफाई कर पाएंगे, सब्सटेंस को क्लासिफाई कर पाएंगे, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज द एलिमेंट एंड व्हाट इज द कंपाउंड एंड व्हाट इज द मिक्सचर. ओके. एक्सप्लेन वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन के जो विभिन्न नियम है उसको हम समझ पाएंगे. ठीक है, क्योंकि हर समय पर तत्व, परमाणु, कंपाउंड ये लगातार क्रिया करते रहते हैं. ठीक है, ये क्रिया कर रहे हैं और कैसे क्रिया करते हैं तो दैट वी विल बी अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मास. जो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, उसका महत्व को हम समझ पाएंगे. एवरेज एटॉमिक मास के महत्व को समझ पाएंगे एंड मॉलिक्यूलर आणविक द्रव्यमान को भी हम समझ पाएंगे. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ इस टर्म्स को लिखते चलें. मैं आगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन अभी जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वह जो भी मैं बोल रहा हूं उसे आप ध्यानपूर्वक सुने. हर चीज़ को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुने. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसे बार बार पॉज कर करके वॉच कर सकते हैं. मैं वापस रिपीट करूंगा. फर्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्पेयर ऑफ लाइफ. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स विशेष अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे समझेंगे क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, एंड आई एम ट्रांसलेटिंग इंग्लिश इनटू हिंदी. सो यू शुड अंडरस्टैंड केयरफुली. ओके, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स विशेष ध्यान रखें, आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को. और आप जब मैं बोल रहा हूँ पॉज करके आप इसको हिंदी में अपने नोट्स में, इसीलिए मैंने कहा है आपसे कि आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना है. मैं रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट टॉपिक हिंदी में, हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में केमिस्ट्री का महत्व. नंबर 2, पदार्थ की अवस्थाओं की विशेषताओं को हम समझ सकते हैं, समझेंगे इस चैप्टर में. पदार्थ की अवस्थाओं की विशेषता, पदार्थ की अवस्थाओं की विशेषता. 3, क्लासिफाई डिफरेंट सब्सटेंस इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. सब्सटेंस, पदार्थों को क्लासिफाई करेंगे. एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर हम उनको समझ सकते हैं. एलिमेंट को क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, हम उसको समझ सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, एक्सप्लेन्स वेरियस लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन, जो रासायनिक क्रियाएं होती है, जो रसायन जो एक दूसरे से क्रिया करते हैं, तत्व एक दूसरे से क्रिया करते हैं, उनके नियम को हम समझ सकते हैं. पॉइंट 5, सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास यानी परमाणुवीय द्रव्यमान. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व. परमाणुवीय द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है औसत परमाणु द्रव्यमान, और ये है मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान. परमाणुवीय द्रव्यमान का मतलब होता है परमाणु का द्रव्यमान. ओके, और आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है अणु का द्रव्यमान. हम अगली कक्षाओं में, कक्षा 10 में भी हमने पढ़ा था. वी हैड रेड अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल इन आवर प्रीवियस क्लास 10th. परमाणु, व्हाट इज द एटम एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूल. एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं. एटम सिंगल फॉर्म में होता है. ओके, परमाणु सिंगल, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, ये है एटम, ओके। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी, सोडियम, आयरन, ओके, क्लोरीन एंड मॉलिक्यूल, एटम याना ये परमाणु। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट केयरफुली समझेंगे इन चीज़ों को, और आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, ओके। मॉलिक्यूल, अणु, दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन के ये दो परमाणु मिल गए तो इसने बनाया H2, ठीक है। नाइट्रोजन के दो एटम मिल गए तो इसने बनाया N2, ठीक है। अब दो हाइड्रोजन मिल जाते हैं, एक ऑक्सीजन मिल गया तो ये अणु बन गया H2O का, जल का अणु बन गया, है ना। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मैक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जल का एक अणु बनाते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई सबके? मैं सोचता हूं सबके समझ में आ रहा होगा। 6th थिंग जो हम इसमें समझेंगे इस चैप्टर में, डिस्क्राइब द टर्म मोल एंड मोलर मास। हम इस पार्ट को पढ़ने के बाद में मोल और मोलर मास जो टर्म है उसको समझ पाएंगे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग इन अ कंपाउंड। कंपाउंड को बनने में जो डिफरेंट एलिमेंट जो भाग निभा रहे हैं, कौन सा एलिमेंट कितना परसेंटेज है, इस चीज को समझ पाएंगे हम कि कितनी मात्रा में कौन सा एलिमेंट उसमें मिला हुआ है, और विभिन्न एलिमेंट के बाद में वह कौन कौन सा एलिमेंट कितना कितना मिलकर उस कंपाउंड को बना रहा है, इसके बारे में हम एलोबरेट कर पाएंगे। डिटरमाइन फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिकुलर फॉर्मूला को हम डिटरमाइन कर पाएंगे इसमें। परफॉर्म द स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री को समझ पाएंगे हम, कंपाउंड्स की स्टोइकियोमेट्री को, ज्यामितीय संरचना। हम पदार्थों की, कंपाउंड्स की ज्यामितीय स्ट्रक्चर को हम समझ पाएंगे और उनकी कैलकुलेशन को समझ पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, these were some important things which we will be able to learn after reading this chapter। यानी कि ये जो चीजें हैं उनको हम समझने के योग्य हो जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में।